This is a structured case discussion. You are working as a consultant gynecologist at a tertiary care hospital where you see a patient, Mrs. ABC, who's 32 years old, Nelly Paris, married for 6 years, trying to conceive. She has been advised to undergo ICSI due to severe male factors of fertility. The patient is a banker by profession and has researched on Google about the complication associated with IVF ICSI. She has come across an information about the formation of multiple cysts in the ovary post ICSI IVF, which she believes is a life-threatening condition. She is concerned and afraid of the procedure. The examiner will have a discussion with you based on 5 questions. You have 10 minutes to answer. Chalo. Should we start? Sure. Okay. Based on the information given in the above scenario, which complication of IVF ICSI has been mentioned and how would you explain it further? Okay, sir. Based on the scenario and about the history, I think I my diagnosis is it's ovarian hyperstimulation syndrome, and I will describe it as. Yeah, I will describe it as that ovarian hyperstimulation syndrome is a complication of the fertility treatment, because of which the ovaries get hyperstimulated due to some injections of the HCG and GnRH, and due to that hyperstimulation, VEGF and renin N2 system get stimulated, and there is an increased permeability, and patient may develop pleural effusion, pneumothorax, ascites, and edema, and shortness of breath. And so this is the ovarian hyperstimulation syndrome. इसी को अगर मैं कंटिन्यू करके पूछूं कि what are the percentage of chances of having this ovarian hyperstimulation? The chances of having ovarian hyperstimulation syndrome is 0.3 to 8%, severe OHSS, and the rate of hospitalization would be 0.03%. While counseling this patient for IVF, for what factors you will evaluate her to assess the risk of OHSS? Okay, sir, while counseling the patient about the IVF, I will ask this patient about the previous history of ovarian hyperstimulation syndrome, and polycystic ovarian syndrome, and then I'll ask my patient about the age of the patient, if it is less than 35, and any ovulation induction has she taking, and these were the risk factor which I will. And about the if she has taken the fertility treatment, then about the strength of the HCG injection, GnRH, and number of follicles which were tracked, number of eggs which were taken, and has the embryo replaced or not, and then about the polycystic ovarian syndrome, and any ovulation inductions she has taken, and about any abdominal pain, bloating, nausea, vomiting, shortness of breath, oliguria, and any vulval swelling, and any history of VT. बेटा मेरा क्वेश्चन क्या था? Sir, while taking the history, what factors, sir? So I will evaluate the risk factor, the age, and the polycystic ovarian syndrome, and any previous history of ovarian hyperstimulation syndrome. How will you follow this patient during IVF to prevent OHS? Okay, sir, I will follow this patient as after ruling out the risk factor. I will see that what type of cycle is she taking. Is she taking long cycle or short cycle, and then I will see that what is the strength of the injections of the HCG and GnRH she has taken, and number of eggs collected, and number of follicle which were
tracked during the final monitoring, and embryo were replaced or not. And then I will see the sign and symptoms also about any abdominal bloating, if she's experiencing any pain, nausea, vomiting, and oliguria, shortness of breath, and swelling. And I will also assess her for the venous thromboembolism. Okay. And What are the alternative therapies to reduce the risk of OHSS? so the alternative therapies to reduce the risk of OHS is that we should, if the patient has a risk factor, so we should also give the, we should use the short cycle, and if she patient is developing any sign and symptoms, then we should not replace the embryo, and not give the injection of HCG, and stop the treatment, and keep an eye on patient and get the labs done, like complete blood count, liver function test, renal function test, and monitor the patient, and put output charting. Okay. Based on which symptoms of OHS you will ask patient to report to hospital immediately during IV? To get hospitalized, sorry? Based on Hello? which symptoms of OHS Mm-hmm. you will ask patient to report to hospital immediately during IV? Okay, sir, if the patient develops severe shortness of breath, severe oliguria, patient develop pain which is intolerable nausea, vomiting, abdominal distension, and patient is unable to come for the follow-up. And so I will ask my patient to report to the hospital. What would be the management plan for her with justification if she develops OHSS? Okay, sir, if the patient develop mild to moderate OHSS, I will counsel my patient about this condition, that this is the complication of the fertility treatment, and I will ask my patient about the sign and symptom, and I will manage this patient on the outpatient department basis, and I will check the input and output charting, and I will guide my patient to take fluid during the thirst, when she feel thirst, and keep an eye on passing urine, and I will get her labs done, and if she's having pain, then I will give analgesic, but I will avoid NSAIDs, and I will also assess the patient for venous thromboembolism, and in case of nausea, vomiting, I will give antiemetics. But if the patient develop any severe or critical case of the OHS, I will admit my patient in high dependency unit. I will create the team of MDT, which will have my consultant gynecologist, the anesthetic and the criminologist, and the psychological counselor. I will get my patient evaluated by them also, and I will get the labs done, like complete blood count, renal function test, liver function test, and I will take the BP, pulse, temperature, respiratory rate, rule out dehydration, take the abdominal girth, assess for the venous thromboembolism, see the leg swelling or the vulval swelling, and give the patient antiemetics in case of nausea, vomiting. And if patient is unable to tolerate fluid, I can also give the patient colloids, do the input-output charting, give analgesics to the patient, and venous thromboembolism, like heparin, for the venous thromboembolism, heparin, and monitor the patient daily, get the labs daily done, and do the monitoring of this patient. And in case of if she develops severe shortness of breath and she is unable to pass urine, and she severe abdominal pain due to abdominal distension, so I will evaluate my this patient for the paracentesis to get her symptoms relieved. And I will.
What will you tell the patient about the prognosis of IVF if she develops OHSS? About the prognosis of IVF, sir, if she develop OHSS, so it is a complication of fertility treatment. But yes, her IVF can be successful, but it will complicate the OHSS, and in during the pregnancy, if she has also ovarian hyperstimulation syndrome, her symptoms get worse, of shortness of breath and nausea, vomiting, and abdominal distension and abdominal pain. So if she get pregnant due to IVF, so it will get worse. So it's Okay. चलो ऑलमोस्ट हमारा 10 मिनट्स भी पूरे हो गए। आपका क्या ख्याल है कि हाउ डिड यू डू? sir, not so good. नॉट सो गुड। व्हाई? Sir, I was forgetting points in between, or maybe. अच्छा, और अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ऐसा लग बेटा रहा पहले था अभी जैसे एक मिनट बेटा, पहले लेट फिनिश देन वी 3 minutes की, लेट्स फिनिश विद हर देन विल रेस्ट ऑफ द यू। हाँ जी, जी सर। जी जी सर। फिर क्या आपका क्या ख्याल है, क्या ठीक नहीं? Sir, I think I was not getting the questions properly, maybe, or maybe I was not aware of the topic. I think so. टॉपिक तो आपको उन्होंने पहले ही बता दिया होगा, आई एम श्योर। जी sir, I नहीं read the बताया। topic. Yeah, sir, I read the topic, but Yes. yeah, I was not getting the prognosis of the IVF with OHSS, and these were. I think it is not तो written बेटा in the लास्ट guidelines. Yeah. एक तो आई थिंक टॉप ऑफ द लिस्ट में जब आपने इतनी ट्रेनिंग कर ली है और आपने पढ़ भी लिया है, तो यू नीड टू हैव सम कॉन्फिडेंस कि जो आप बता रहे हो वो ठीक बता रहे Yeah. हो। यू डिडंट दैट बैड। द क्वेश्चन इज दैट देखो बेटा, 100% तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन को इस तरह आप नहीं बता सकते, ये तो दैट इज अ फैक्ट। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो आपने मिस किया हुआ है या फिर आपको उसने भी याद किया। अब जो मुझे आपका इस पे सारे क्लिनिकल सिनारियो पे इतराज है, एक तो उन्होंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो जो आपको चाहिए प्रॉब्लम उन्होंने दे दी है। दूसरा, यू डिड नॉट लिसन टू द क्वेश्चंस प्रॉपरली, और अपने अपने आप को उसको टाइम नहीं दिया कि उनको जरा समझो कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने जवाब दिया। ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन की जब भी आप मैनेजमेंट की बात करते हो, ये वाला जो है ना सिनारियो, जो ये सारा जो दिया हुआ है, ये इट्स नॉट अ गुड स्टेशन। गुड स्टेशन इसलिए नहीं है क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी ओपन एंडेड क्लिनिकल सिनारियो जो उन्होंने दे दिया है। इसमें उन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया। नॉर्मली जो आपका एग्जाम में अगर क्लिनिकल सिनारियो आता है वो इस तरह का आएगा कि इसमें वो स्पेसिफिकली OHSS को उन्होंने आपको कुछ फैक्टर्स दिए होंगे, या आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दो चीज़ें उसमें होंगी। नंबर 1, जिसमें आपने पहले यूनिट टू आइडेंटिफाई कि वो किस स्टेज ऑफ IVF की ट्रीटमेंट प्लान में है। क्या उसका स्टार्टिंग से क्या इंजेक्शन अभी स्टार्ट हुए हैं, क्या इन द मिडल है, क्या ट्रिगर दे दिया गया है कि नहीं दे दिया गया, या चौथा आपका इसमें कि जी के ट्रिगर के बाद उसके बाद क्या उसका ट्रांसफर हो चुका है कि अभी होना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ यू नीड टू आइडेंटिफाई। जब भी ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन की बात आएगी कि स्टेज पे है या किस टाइम पे है, इसमें आपने यू नीड टू आइडेंटिफाई
कि वो उस आईवीएफ प्रोग्राम में किस जगह इस टाइम खड़ी है। शी कुड बी अभी मिडिल ऑफ द में हो सकती है, जहाँ पे अभी ट्रिगर उसको, सॉरी ट्रिगर कह रहा हूँ, स्टिमुलेशन अभी हो रही है, हाफ वे थ्रू है और एकदम उसके फॉलिकल ज़्यादा बन गए हैं। शी कुड बी एट दैट टाइम जहाँ पे उसको एचसीजी का ट्रिगर लग चुका है कि अभी नहीं लगा, या फिर उसका ट्रांसफर इवन हो चुका है कि नहीं हो चुका, क्योंकि दैट विल ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन कि क्या होगा। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू, कोई भी ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन आ जाती है तो किस स्टेज ऑफ आईवीएफ प्रोग्राम में वो है। नंबर टू, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेकंड पार्ट आ जाता है कि जी कि वो किस वाली पे सिनारियो जो है उसका हाइपरस्टिमुलेशन किस स्टेज पे है, एंड किस स्टेज कुड बी माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर। एंड वी डू अंडरस्टैंड कि इन तीनों माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर की मैनेजमेंट फिर हमने सबकी डिफरेंट है। माइल्ड की फर्क है, माइल्ड में तो नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जिनको भी आप हाइपरस्टिमुलेशन को स्टिमुलेट करते हो वो आप उसमें पहुंच जाते हो, इजंट दैट सो। माइल्ड में तो सबने जाना ही है। मॉडरेट और सीवियर वाला जो डिजीज आ जाती है उसकी यस परसेंटेज है जो आपने बताया कि वो है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने फिर उसका जवाब देना। अब जो लास्ट आज मतलब इसमें भी टास्क दी, फिर अब एक आ जाता है जिसमें एक आपने रोल प्लेयर के साथ बैठ के उसके हिसाब से बात करनी। एक आ जाता है जिसमें आपने टेक्निकली एग्जामिनर के साथ कौन सी लैंग्वेज, मेडिकल टर्मिनोलॉजी कितनी बोलनी है कि नहीं बोलनी, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन स्टार्ट ऑन। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? उन दोनों में भी उनकी Yes, काउंसलिंग, उनकी बात करने में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब yes, sir. जो मुझे आपका वाला सिनारियो था उसमें दो तीन जो मतलब क्वेश्चंस हैं, आपने दो तीन दफा उसमें मुझे आंसर किया कि जी कि ओलिगो यूरिया हो जाए तो ये हो जाए तो ये हो जाए तो फिर आपने फौरन हॉस्पिटल आना। हालांकि उसका जो उस ये वाला जो आंसर था ये क्वेश्चन टिपिकली बाद में आया है जिसका आपने मुझे आंसर भी दिया है, लेकिन जो पिछले क्वेश्चंस में थे उसमें हमने इसमें नहीं जाना था। अब जैसे पहला वाला सवाल जो है जिसमें बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव सिनारियो विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवीएफ ICSI हैज बीन मेंशन्ड, ये किए उसका आपने जवाब दे दिया कि जी इट इज ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन। ठीक है जी, एंड हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट फर्दर। अब आगे आपने पेशेंट को उसको किस तरह एक्सप्लेन करना, एंड उसमें क्योंकि दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक जिसमें आपने एग्जामिनर से बात कर रहे हो, नॉट टू द रोल प्लेयर। Mhm. जी, उसमें फिर आपकी जो ये टेक्निकल चीजें आएंगी कि जी कि जिसकी वजह से कि नंबर वन ये है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन है, ये होता बिकॉज ऑफ एंडोजिनस या एक्सोजिनस एसीजी की वजह से होता है। दूसरा, ये सारा कुछ इंग्लिश में होगा, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसकी वजह से इंक्रीज परमिबिलिटी होती है, उसकी वजह से थर्ड स्पेसिस में सारा फ्लूइड चला जाता है, एंड उसके बाद हाइपर स्टिमुलेटेड ओवरीज हो जाती हैं, एंड फ्लूइड लीक्स इनटू, सॉरी, फिर उसकी वजह से पेशेंट इज डिहाइड्रेट, और जो स्वेयर केसेस होती हैं उसमें मल्टी सिस्टम तक डिसफंक्शन हो सकता है। Mild forms are reported in about 33% of IVF. The overall prevalence of moderate to severe OHS is about 3 to 8% जो आपने बताया था। अब यहाँ पे वो टेक्निकल चीजें भी आ गई हैं और इसके साथ रिलेटेड स्पेसिफिकली आ गया है कि जी एचसीजी की वजह से, ये हार्मोन की वजह से ये सारा कुछ होता है, वो ही इसको ट्रिगर करता है। उसकी वजह से आपका बेसिकली परमिबिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड स्पेसिस में जो जो आपकी हैं, जैसे चेस्ट है, एब्डोमेन है, वहाँ पे आपकी फ्लूइड की कलेक्शन हो जाती है। इवन ज़्यादा चीज़ों के अंदर हार्ट की दिक्कत भी हो सकती है, एंड दिस फॉर्म इज, उसकी परसेंटेज इतनी इतनी। ये इनकी की के अंदर उन्होंने आंसर दिया हुआ है। While considering this patient, ये अगला क्वेश्चन आ गया। For IVF, for what factors you will evaluate her to assess the risk of OHS? That means कि आपने सिर्फ इसमें उसके रिस्क फैक्टर्स बताने हैं। आपने जो मुझे बताना शुरू कर दिया इसमें, आपने वही कि जी उसको ओलिगोयूरिया होगा, नौसिया, वोमिटिंग, पेन, वो सारा कुछ, वो नहीं है। ये they were asking for कि सिर्फ आपने इसके रिस्क फैक्टर्स बताने हैं। एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर OHS जो आपने बताया भी बीच में कुछ कि जी के पहले कोई हिस्ट्री ऑफ OHS तो नहीं हुई थी कभी स्टिमुलेशन के अंदर। उसका BMI इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बताना है। PCO इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बताना है। तो सारे ये रिस्क फैक्टर्स आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं, इसमें आइडेंटिफाई करने, इसमें आपने उसको साइन एंड सिम्टम्स नहीं बताने जो आपने इसमें बताए थे। अगला आ जाता है क्वेश्चन, हाउ विल यू फॉलो दिस पेशेंट ड्यूरिंग IVF टू प्रिवेंट OHS। उस प्रिवेंशन के अंदर OHS के अंदर जो आपके है वो, नंबर वन,
उसका जो आप बताओगे। हाँ सॉरी, उसमें वो रेज्ड एएमएच लेवल्स भी आ जाते हैं, जो हमारा रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है इसका ओएचएस की। अम, अम, वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। अब अगला सवाल इसका था जो फॉलो करना है इसको, सॉरी, हाउ विल यू फॉलो दिस पेशेंट ड्यूरिंग आईवीएफ टू प्रिवेंट ओएचएस। The patient should be monitored closely, ये मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ उसमें, by checking hormone levels as well as follicular response on ultrasound to recognize the occurrence of voices। इसका मतलब ये है कि एनीबडी उसका जो इसके रिस्क फैक्टर्स होंगे जिसमें ओवरिन हाइपरस्टिमुलेशन होती है, उसमें हमने करना ये है कि उसको जितने हम रूटीनली जो हम बुलाते हैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए, इसमें उनको थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली बुलाते हैं ताकि टू मॉनिटर एंड सी दे। और उसकी जो डोजेस जो होगी उसको भी हमने अकॉर्डिंग टू दैट, वो भी उसके अकॉर्डिंग टू एडजस्ट करेंगे। इफ अ हाई रिस्क सिचुएशन इज रिकग्नाइज कि जहां पे आपको लग रहा है कि ओएचएस चली जाएगी, उसमें फिर हम उसको एचसीजी का ट्रिगर नहीं देते, उसमें हम उसका एचसीजी का ट्रिगर नहीं देते, या हम उसका कैंसिल कर देते हैं जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है अभी ड्यूरिंग स्टिमुलेशन। उसी की बजाय एचसीजी के बजाय फिर उससे डेकापेप्टाइल से हम उसको, अगर हमें ट्रिगर भी करना हो तो फिर उसको डेकापेप्टाइल के साथ ट्रिगर करते हैं, जिसमें चांसेस ऑफ ये ओएचएस के कम हो जाते हैं, लेकिन उसका नेट रिजल्ट एंड पे जाके मिच्योर्ड आपको एग्स मिलने की चांसेस उसमें से थोड़े से चांसेस परसेंटेज कम हो जाते हैं। तो ये हो जाता है। और नॉर्मली जो होता है कि ये जब हम एचसीजी लगाते हैं, ये बेसिकली उसके जो उसका इफेक्ट है वो तकरीबन 9 to 11 डेज के दौरान दौरान तक ये सिम्टम्स इसके होगी या उसकी रिस्पॉन्स आ सकती है। जरूरी नहीं है कि आज लगा है तो कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, तो इट कैन टेक अप टू 9 to 11 days फॉर दिस इफेक्ट ऑफ दिस एंड ट्रिगरिंग ऑफ दिस ओएचएस होने के लिए। अब चौथा सवाल था, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव थेरेपीज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओएचएस। अब जिसमें हमें रिस्क फैक्टर्स मिल जाते हैं, उसमें हम ओएचएस पेशेंट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। उसे करने के लिए कि जो आपने इसको डोजेज देनी है, वी स्टार्ट विद दिस पेशेंट विद लो डोजेज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, ताकि उसकी वजह से एकदम उसकी स्टिमुलेशन ना हो। उसके बाद उसको, जैसे आपने कहा कि हम शॉर्ट प्रोटोकॉल्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं टू डाउन रेगुलेट, वो भी कर सकते हैं। उसमें हम एचसीजी की डोजेज को अवॉइड कर सकते हैं। और उसके अलावा हम ऐसे कुछ पेशेंट्स में कुछ स्टडीज लिखी हुई हैं जिसके अंदर में कहा हुआ है कि जी हम उसमें इवन ये मेटफॉर्मिन जो है कैन बी एडेड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट, जो थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है चांसेस ऑफ दिस, जो स्पेशली इन पेशेंट्स जिनकी पीसीओएस है। और फिर फाइनली जिनमें ज़्यादा होने के और ज़्यादा चांसेस है, उसमें हम उनको हाई प्रोटीन डाइट का एडवाइस करते हैं, या उनको इवन आईवी एल्बुमिन की अगर ज़रूरत है तो वो दी जाती है। एंड ऑफ कोर्स इन द एंड इट इज़ ऑलवेज कि जी हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम, अगर स्टिमुलेशन चल रही है तो स्टिमुलेशन को हम रोक लेंगे या विल स्टॉप दैट प्रोसेस। ओके, छठा सवाल था बेटा, व्हाट वुड बी द मैनेजमेंट प्लान फॉर हर विद जस्टिफिकेशन इफ शी डेवलप ओएचएस। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो बड़ा टिपिकल है, जिसका आंसर तो बड़ा सिंपल सा है कि जी द मैनेजमेंट प्लान विल डिपेंड अपॉन द सिवियरिटी, जिसका मैंने कहा, नंबर 2 स्टेज एट विच डायग्नोसिस इज मेड, एंड नंबर 3 और वेदर अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं है। क्योंकि अगर इसमें पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको स्वेयर एचसीजी अपना सॉरी हाइपरस्टिमुलेशन हो जाती है, समटाइम वी इवन हैव टू टर्मिनेट दीज काइंड ऑफ प्रेगनेंसीज फॉर द सेक ऑफ द पेशेंट, लेकिन उसमें अगर वो पेशेंट उस स्टेज तक चली जाती है। बाकी तो उसकी डिटेल आपको पता है कि माइल्ड में क्या करना है, मॉडरेट में क्या करना है, और स्वेयर में क्या करना है, एडमिशन कब करना है, एल्ब्यूमिन कब देना है, और पैरासिंथेसिस कब करनी है, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो टर्मिनेशन कब करनी है। दिस इज हाउ इट शुड हैव बीन। और मेरा नहीं ख्याल कि आपने इतना बुरा इसके आंसर्स दिए, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अपना थोड़ा सा बढ़ाओ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। एग्जामिनर ने भी उन्हीं किताबों से वही पढ़ के वहीं पढ़ के आपके पास आके बैठे। अब इसमें तभी ना ठीक है बेटा, सर। आपने कुछ पूछना हो तो आप बताओ। नहीं नहीं, थैंक यू सर। चलो, इफ सर देर आर कितने मार्क्स देंगे आप मुझे? प्रॉब्ली आई गिव यू बिटवीन 5 and 6, इधर तक आप ले जाओ। हाँ, क्योंकि जो की के हिसाब से आपने बीच में जो लफ्ज आप बोल देते हो उसका आपको आंसर मिल जाता है।
You probably get between 5 and 6. और हाँ, इसमें अगर हमने पेशेंट को वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वी हैव टू टेल कि अगर हाइपर स्टिमुलेट हो गया है और उसको हमने लेस्पो ट्रीटमेंट भी अगर स्टॉप कर दिया है उसका, अगर उसके एग पिकअप हो गए हैं तो उनको हम फ्रीज कर लेते हैं। वी डो नॉट ट्रांसफर देम अंडर फ्रेश साइकिल, फिर उसको हम फ्रोजन साइकिल में करते हैं। और उसको अवॉइड भी, उसको वी टेल द पेशेंट टू अवॉइड क्वाइटस, क्योंकि वो फिर नेचुरली कई बार कंसीव भी कर लेती है बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन। इसमें मे बी वी कैन अवॉइड दैट, क्योंकि उसका जो आईवीएफ या ICSI हो रहा है वो बिकॉज ऑफ मेल फैक्टर हो रहा है। लेकिन वी टेल द पेशेंट नॉट टू हैव क्वाइटस फॉर द नेक्स्ट 11 days और 10 days, जब तक वो सेटल डाउन नहीं हो। जी, अब किसी और के क्वेश्चन है तो वी कैन टेक देम वन बाय वन। ये सारा समझ आ गया? सर ये शॉर्ट प्रोटोकॉल और लॉन्ग में मुझे डिफरेंस बिल्कुल समझ नहीं आता, थोड़ा सा अगर आप बेटा, जो लॉन्ग प्रोटोकॉल होता है ना फॉर यू, उसमें बेसिकली व्हाट वी डू इज कि हम डाउन रेगुलेट ओवरीज को बिल्कुल शट डाउन कर देते हैं। जब हम उसको शट डाउन करनी हो तो फिर उसका हम स्टार्ट करते हैं जिस साइकिल पे उसका IVF प्रोग्राम स्टार्ट होना है ना, उसके एक साइकिल पहले, डे 21 पहले उसको वो हम लगाना शुरू कर देते हैं इंजेक्शंस। उसकी वजह से ओवरीज बिल्कुल शट डाउन हो जाती है। जब उसका एडवांटेज ये होता है कि जब ओवरीज बिल्कुल शट डाउन हो जाती हैं तो आप बस बाहर से जितनी डोज देते हो वो कंट्रोल डोज होती है, उसके अकॉर्डिंगली देते हो। पहले ये सोचा जाता था कि इनके क्योंकि नंबर ऑफ फॉलिकल्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, उनकी एक क्वालिटी बेहतर मिलती है, तो क्योंकि आपने कंट्रोल डोजेज उसको दी हुई है ऑफ FSH और LH की, तो उसके हिसाब से आप उसको मैनेज बेहतर कर सकते हो। जो शॉर्ट प्रोटोकॉल है फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज स्टार्टेड ऑन द, जिस साइकिल में हमने IVF करना है उस साइकिल के सेकेंड डे पे, जिसमें इंटरनली भी आपका ये ईस्ट्रोजन और ये हार्मोन्स आपके प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो दे आर स्टार्टेड फ्रॉम द डे 2 ऑफ द साइकिल जिसमें हमने IVF करना है। और जो लॉन्ग प्रोटोकॉल है वो पिछले साइकिल जिसमें हमने करना है उससे एक साइकिल पहले, डे 21 से हमने वहां से उसकी डाउन रेगुलेशन करने के बाद फिर उसको बाद में स्टिमुलेट करते हैं। इसमें हम सिर्फ डायरेक्टली उसको फिर बाद में डे 2 से ही शॉर्ट में स्टार्ट कर देते हैं। एडवांटेज शॉर्ट प्रोटोकॉल का ये है कि उसमें आपकी ड्यूरेशन थोड़ी होती है, नंबर 2 आपकी जो ड्रग्स यूज की जाती हैं वो थोड़ी होती हैं, एंड द कॉस्ट रिड्यूसेस ऑफ द पेशेंट गोइंग थ्रू एन IVF प्रोग्राम। लॉन्ग प्रोटोकॉल के अंदर इट इज जनरली जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। हम प्रेफर करते हैं लॉन्ग प्रोटोकॉल्स उन पेशेंट्स में करने का जो यंग होती हैं एंड जो थोड़ी सी ओल्डर ग्रुप जिनका AFC इंटरफॉलिकल काउंट वगैरह थोड़ा सा लोअर साइड पे हो, उनमें हम प्रेफर करते हैं कि हम शॉर्ट प्रोटोकॉल करें। जिनमें ये AMH लेवल्स थोड़े से लोअर साइड पे या FSH ज़्यादा हो, उसमें शॉर्ट प्रोटोकॉल इसलिए दिया जाता है कि अगर हम ओवरीज को कई बार बिल्कुल डाउन रेगुलेट कर लेते हैं तो फिर वो कई बार उठती नहीं है या दोबारा रीजनरेट नहीं करती, तो फिर देन दे गो डाउन और फिर आपका रिस्पॉन्स बहुत बुरा हो। इसलिए नॉर्मल ओल्डर पेशेंट से पहले इस जमाने में हम नॉर्मली शॉर्ट प्रोटोकॉल यूज किया करते थे और यंगर पेशेंट्स के अंदर हम लॉन्ग प्रोटोकॉल किया करते थे। लेकिन अब ज़्यादा प्रेफरेंस पूरी दुनिया के अंदर अब शॉर्ट प्रोटोकॉल इज मोर प्रेफरेबल बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, उसकी टाइम ड्यूरेशन एंड रिजल्ट्स, क्योंकि लैब बेहतर होती जा रही हैं तो उनके रिजल्ट्स भी एज कंपेरेबल टू दीज टू। जी जी जी, थैंक यू। और जिनमें ये होता है वेरिएंट हाइपर स्टिमुलेशन पहले हुआ हो और या उसमें उसके रिस्क फैक्टर्स हो, लो BMI हो या ये अपना क्या कहते हैं PCO हो, उसमें हम शॉर्ट प्रोटोकॉल इज प्रेफर्ड विद अ वेरी वेरी लो डोज से हम स्टार्ट करके फिर उसके हिसाब से आगे चलते ओके सर। सर जी। सर ये पूछना था कि शॉर्ट प्रोटोकॉल के अंदर हम मतलब ये नहीं करते फिर डाउन पूरा हम डाउन रेगुलेट करते के शॉर्ट नहीं प्रोटोकॉल के अंदर? नहीं नहीं, क्योंकि डे 2 से स्टार्ट हो गया ना बेटा, जब उसकी वेरिंग साइकिल को देखो ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखो, उसके हिसाब से हमने डे 2 से इसको स्टार्ट कर दिया जहाँ पे उसका अपना भी आ रहा है और बाहर से भी आ रहा है, सॉरी अंदर से भी आप एंडोजेनस भी आ रहा है और एक्सोजेनस भी आ रहा है। अब वहां से उसकी डाउन, वहां से उसके साथ ही स्टिमुलेट करना शुरू कर दिया। उसमें डाउन रेगुलेट नहीं होता, डाउन ओके रेगुलेट आप सर। उसमें करते हो लॉन्ग प्रोटोकॉल में।
क्वेश्चन पूछना है इसके अलावा ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। सर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से मैंने क्वेश्चन पूछना था इस टॉपिक के अलावा कि सर उसमें जैसे कि नाइस गाइडलाइन कहती है आईवीएफ करना है, आपने डायरेक्ट 2 इयर्स के बाद पेशेंट आया तो आप आईवीएफ की उसको ऑप्शन देंगे। लेकिन मैंने जैसे सर का लेक्चर सुना था तो उन्होंने ये कहा कि आप कंबाइंड ओवेरियन स्टिमुलेशन जो सा है आप फर्स्ट में आप पेशेंट को यही ऑफर करेंगे और फिर उसके बाद आईयूआई एंड देन आईवीएफ। सर इसमें आप क्या कहते हैं? नहीं, उसमें अनएक्सप्लेन में वो कहता है कि डायरेक्टली आप आईवीएफ कर लें। सर नाइस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली वो ये कहते हैं कि आपके पास पेशेंट आया है 2 इयर्स उसके गुजर चुके हैं तो अब आपने उसको आईवीएफ ही ऑफर करना है। वो कहते हैं डू नॉट ऑफर हर स्टिमुलेटेड आईयूआई एंड ओवेरियन वो दूसरी आपने क्लोमिफेन नहीं देनी। बेटा जो उसकी मैं ये अभी पहले, क्योंकि मैंने ये वाली मुझे अभी याद नहीं है कि आई हैव नॉट रेड दिस इन अ व्हाइल, तो आई डोंट रिमेम्बर कि अनएक्सप्लेन्ड मीन डायरेक्टली आईवीएफ। उसमें डू रिमेम्बर दैट कि आपने जब भी बात करनी है आईवीएफ की अनएक्सप्लेन्ड के अंदर, आपने 3-4 फैक्टर्स उसमें होंगे। लेट्स सपोज अगर वो मैरिड फॉर 2 इयर्स भी आगे आ जाती है और उसमें कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं है, कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट फॉर एज पे डिपेंडेंट है वो। अगर शी इज एट द एज ऑफ एट 638 पे आ गई है और 2 साल शादी को हो गए हैं और अनएक्सप्लेन्ड हो जाती है, तो मे बी वी कैन डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, और पेशेंट की, आप क्योंकि एग्जाम की बात कर रहे हो उसमें उसकी जी जी। अफोर्डेबिलिटी है, फिर यस यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। अगर नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने ये 3-4 फैक्टर्स जरूर देखने हैं कि उसकी शादी की ड्यूरेशन कितनी हो गई है, उसकी उम्र कितनी हो गई है, और उसकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। आईवीएफ वो डायरेक्टली अनएक्सप्लेन में इसलिए कहते हैं क्योंकि समटाइम इट हैपेंस कि जब हम आईवीएफ करते हैं जिसमें हमने एग पिकअप कर लिया और स्पर्म्स वहां से लेके तो हमने उनको फर्टिलाइज करने की कोशिश की, तो वो एग फर्टिलाइज ही नहीं होते। वो एग्स क्यों नहीं फर्टिलाइज होते, उसी और फिर कि इसी को आपने उन्होंने रिसर्च के अंदर देखा कि वो एग लेके किसी और स्पर्म के साथ अगर फर्टिलाइज करें तो फिर हो जाते हैं। तो उन्होंने इसमें कहा कि देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ जेनेटिक इश्यूज जिसकी वजह से इन दोनों की प्रेगनेंसी नहीं हो रही। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसमें हम ये कहते हैं कि आईवीएफ सिर्फ डायग्नोस्टिक सॉरी थेरेप्यूटिक भी है और साथ डायग्नोस्टिक भी है, क्योंकि ये वाली डायग्नोसिस के जिनके कुछ जेनेटिक आपस में इश्यूज हैं कि आपके एग्जोस्पर्म्स नहीं मिल रहे, ये वी कैन ओनली फिगर इट आउट व्हाइल डूइंग एन आईवीएफ। लेकिन फिर ऐसे पेशेंट के अंदर फिर आप जब इक्सी करते हो तो उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती, अदरवाइज दे विल नॉट कंसीव। सो कमिंग बैक, जब आपके पास क्लिनिकल सिनारियो होगा आप अनएक्सप्लेन के अंदर डायरेक्टली आईवीएफ पे नहीं जा सकते अनलेस के अनटिल उसकी एज बढ़ती जा रही है, उसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है और पेशेंट डायरेक्टली कहे कि जी मैंने तो आईवीएफ के लिए जाना है। और वो अगर पूछें कि आप डायरेक्टली आईवीएफ के लिए क्यों जाते हैं तो आप ये जवाब दे सकते हो कि देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें नहीं है। एज अ रूटीन जो प्रोटोकॉल्स मतलब कि नॉट बाय द गाइडलाइंस बट व्हाट वी फॉलो प्रैक्टिकली हियर इज दैट कि जो अनएक्सप्लेन आ जाता है उसको 3 मंथ्स के लिए, अगर उसकी एज ठीक है और शादी को अभी से थोड़ा टाइम ही गुजरा है, पहले स्टिमुलेशन देंगे। ऑफ कोर्स बाकी सारे प्रीरिक्विजिट की उसकी ट्यूब्स चेक हो गई हैं, स्पर्म चेक हो गया, सारा कुछ इज नॉर्मल, मैं उनमें बात कर रहा हूँ। दूसरा उसमें फिर अगर 3-4-6 साइकिल्स तक नहीं आई, उसकी स्टिमुलेशन से नहीं कंसीव करता, तो उसका फिर आईयूआई 3 साइकिल्स, और 3 साइकिल्स के अंदर अगर उसका आईयूआई भी सक्सेसफुल नहीं होता देन वी मूव ऑन टू आईवी। दैट इज द जनरल प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल विच वी फॉलो। इम्तिहान के अंदर आप जब जाओगे तो आप ये सारी चीजें एवेलुएट, क्योंकि आपको वहाँ पे क्लिनिकल सिनारियो दिया गया होगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर देन यू हैव टू डिसाइड कि आपने इसमें क्या करना है। अगर आप डायरेक्टली आईवीएफ में जाओगे तो उसकी जस्टिफिकेशन आपने ये जेनेटिक वाली दे सकते हो कि दैट वाज द रीजन कि हम जिसके ऊपर हिसाब से ही कर सकते हैं। सर ये अगर अगर उसमें एज कोई तक प्रॉब्लम आ गई है तो फिर तो कहानी फर्क होगी। सर अगर कोई एक बॉर्डर लाइन एज जैसे 33 से 35 ईयर्स की एज के अंदर पेशेंट आती है और उसकी शादी को भी 2 साल हो गए हैं तो इसमें सर आप फिर अगर हम इसमें हम कैसे जस्टिफाई करेंगे पेशेंट को मैं कि तो इसको शादी। अगर 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 बेटा अनएक्सप्लेन्ड है और उसका हाँ हस्बैंड जी। कहीं आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ कंट्री काम नहीं करता, ये तो नहीं कि वो साल के बाद उसने वापस आना है। जी अगर वो नहीं उसके इधर। साथ ही रह रहा है, हाँ दे जी। लिविंग टुगेदर, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तो उसका अगर 35 से कम है तो आई विल ट्राई टू गिव देम ऑल दीज के जी पहले स्टिमुलेशन, डिपेंडिंग ऑन पहले उसकी क्या ट्रीटमेंट हो चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हुई तो पहले स्टिमुलेशन,
कुछ साइकिल्स, फिर उसके बाद IUI और उसके बाद फिर आई। ओके, थैंक यू सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, अगर जिन पेशेंट में रिस्क फैक्टर हैं कि फॉर OHSS टू डेवलप, तो उनमें क्या हम एंटागोनिस्ट साइकिल भी दे सकते हैं? एंटागोनिस्ट साइकिल करें मतलब एगोनिस्ट की बजाय, तो डिक्रीज द रिस्क ऑफ OHSS। यस, कर सकते हैं, टेक्निक साइकिल दे सकते थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक तो आपने जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रोग्नोसिस ऑफ IVF इन OHSS, शायद इस तरह का, उसका सर जवाब बता दें। हैं। प्रोग्नोसिस का बेटा उन्होंने की में लिखा हुआ है, लेट मी चेक। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? हाँ, सर बिल्कुल लास्ट वाला। okay. What will you tell the patient about the prognosis of IVF if she develops ovarian hyperstimulation? उस पर उसने कहा है कि it will depend upon the time of onset of OHS may determine कि जी हमारा IVF प्रोग्राम कहाँ तक चल रहा है। Again, the early onset OHSS जो बहुत जल्दी हो जाए is due to effect of exogenous HCG and presents within 9 days of the ovulatory trigger HCG, while late onset OHS is due to release of endogenous HCG from an early pregnancy and developed 9 days after ovulatory HCG. It is late onset OHS that is more severe and lasts longer than early onset OHS. इसकी मतलब समझ आई? Basically what they're trying to say is that कि जी इसको उसने दो में डिवाइड किया है कि अर्ली ऑनसेट है जब आप उसकी स्टिमुलेशन कर रहे हैं, लेट ऑनसेट वो है जिसमें वो प्रेग्नेंट होगी। और ये दोनों की वजह से, क्योंकि यू बोथ नो कि जो अर्ली वाला है उसमें आप बाहर से उसको HCG देके जो अपने उसको ट्रिगर किया है, और जो बाद वाला है वो प्रेगनेंसी के अंदर आपका HCG ने रेज होना ही होना है, उसकी वजह से वो हो रहा है। जो प्रेगनेंसी वाले की वजह से रेज होके OHS में चली जाती हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन, अगर वो स्वे डिजीज में आ जाती हैं तो फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे उसकी टर्मिनेशन हो जाती है। अगर वो अर्ली वाला है तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमने पहले डिस्कस किया उस पर आज सही, टर्मिनेशन की कोई है परसेंटेज कि हम लोग कितने परसेंट जो है प्रेगनेंसीज OHS में टर्मिनेट करनी पड़ सकती हैं? वेरी गाइडलाइन में फ्यू, लेकिन वेरी होती बहुत कम है। मुझे परसेंटेज ऐसे याद नहीं है, लेकिन वी हैव डन कपल ऑफ देम व्हिच आई रिमेंबर विविडली, क्योंकि वो याद हमें इसलिए रहती हैं क्योंकि बेचारी वहाँ इनफर्टिलिटी के साथ आई है, प्रेग्नेंट भी हो गई है, और विद ऑल दिस क्वेश्चन जनरली ये वो हैं जो आपकी सिवियर कॉज के अंदर बाकी सारी उसमें चले जाते हैं डोमेन में। जैसे जो पैरासिंथेसिस जिसकी हमने की, नॉर्मली इसके बाद जो करते हैं वो पेशेंट दे परफॉर्म वेरी वेल और बड़ी जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसमें वो दोबारा असाइटिस जो है विद इन अ फ्यू डेज दोबारा बन जाएगी। और अगेन उसके बाकी जो मार्कर्स हैं जिसमें उसका हेमेटोक्रिट है और बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उस पर डिपेंड करता है वो। और ऑफ कोर्स DVT वाली अगर कंडीशन आ जाती है जिसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आ जाएगा, तो वो दैट ऑल काइंड ऑफ एड्स ऑन। एंड इसमें एग्जैक्टली कि किस में करना है कि नहीं करना, लेकिन देन इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट और उसकी जनरल कंडीशन और उसकी रिपोर्ट्स एंड देखने के बाद भी फैसला करते हैं। जी थैंक यू। सर इसमें VTA के लिए कितने टाइम तक हम उसको VTA की ट्रीटमेंट देंगे वेनस जब तक वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की? जब तक वो उसका नंबर वन वो मोबिलाइज नहीं हो जाती बेटा। और सिर्फ इसका VT की उसमें थोड़ी सी बाकी चीज़ें भी हैं कि जो पेशेंट ऐसा है कि जिसमें जैसे ओबीस बहुत ज़्यादा, जिसमें वह ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स ऑफ ये है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के हैं, या उसको कोई मेडिकल डिसऑर्डर ऐसा है जिसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है ज़्यादा उसके ब्लड वर्क के अंदर, उनमें थोड़ा सा लंबा चलता है। अदरवाइज ये वाले पेशेंट जब तक मोबिलाइजेशन और उनकी जब ठीक हो जाती है देन वी कैन स्टॉप डूइंग दैट। लेकिन इसमें सिर्फ वो VT की थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस भी है और साथ अपना वो स्टॉकिंग्स इन सारा चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी एड ऑन हो जाती हैं। And sir, OHSS with pregnancy, so the chances would be that the patient will have more shortness of breath, more abdominal distension, and the जी, complication would be aggravated. यस,
डेफिनेटली इसीलिए वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू डू दिस इज दैट कि सॉरी मेरे से निकला। आपने क्वेश्चन बेटा क्या पूछा था? Sir, complication with pregnancies if the patient get pregnant with OHSS. So हाँ what हाँ, would be the इसीलिए complication? इसीलिए अगर ऐसे पेशेंट जो ओवेरियन हाइपोस्टिमुलेशन में जाते हैं, उनमें अगर उनका एग पिकअप हो गया है तो फिर नॉर्मली उस साइकिल में उनका ट्रांसफर नहीं करता। उनके एम्ब्रियोज हम सारे फ्रीज कर लेते हैं, दे ट्रांसफर्ड आफ्टर 3 मंथ्स, जब उसकी सारी चीजें सेटल हो जाती हैं। अगली दफा उसको ओवेरियन हाइपोस्टिमुलेशन होने के चांसेस मिनिमम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसके फ्रोजन एम्ब्रियोज हैं, और जब फ्रोजन एम्ब्रियोज को हम ट्रांसफर करते हैं उसमें फिर हम ओवरीज को स्टिमुलेट करने की हमें जरूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ हमने एंडोमेट्रियम बनानी होती है यूट्रस की लाइनिंग के लिए। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन, फिर ऐसे मरीजों को हम वो करते हैं। तीसरा, अब जो एक नई रिसर्च आई हुई, ये नई तो नहीं, खैर बाहर तो हो रहा है, पाकिस्तान में स्टिल अभी तक नहीं हो रहा, उनमें फिर ये कहते हैं कि इनका अर्ली ही हम एग पिकअप कर लेते हैं, जिसमें इमेच्योर फॉलिकल्स आप ले लेते हैं, उनको फिर आप IVM करते हो, जिसमें उसको मेच्योरिटी हम उनको ग्रो कराते हैं इन द लैब। अच्छा, वो लैब में मेच्योर हो जाते हैं तो फिर उनकी वो अपना सॉरी फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर उसका वो आगे ट्रांसफर करते हैं अगले से 2-3 महीनों के बाद, ताकि वो सेटल हो जाए। इवन जो इनमें अर्ली ऑनसेट जिसमें ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन होती है कि उसमें हम कई बार IVM इन विट्रो मैच्योरेशन के लिए भी पहले ही एग पिकअप कर लेते हैं, रादर देन हम उसको लेट करें, कि हम उसके फॉलिकल्स इतने बड़े ही नहीं होने देंगे कि तब तक उसकी सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन हो जाए। Okay, thank you. चलो, इमरान, डॉक्टर शनाज ने आना है? सर उनकी पहले क्लास थी। हो गई? जी सर। चलो एक्सक्यूज मी सर। जी। सर बस ये क्वेश्चन पूछना था सर, ये जो हम लोग HCG ट्रिगर देते हैं ना, तो ऑप्टिमली तो आम 12 to 14 डेज में, लेकिन सर अगर हमें डिजायर्ड फॉलिकल साइज जो हम कहते हैं 20 mm का ना मिले, तो हम लोग आगे चल के भी दे सकते हैं इसको किसी भी डे ऑफ द साइकिल में? यस ऑफ कोर्स, वो तो डिपेंड करता है आपके नंबर 1 कि पेशेंट की साइकिल लेंथ कितनी है also। इसलिए हर पेशेंट को ये 14 डे पे नहीं लगता। और सर जब भी ट्रांसफर होता है ये ऑलमोस्ट किस स्टेप पे होता है? किस डे पे होता है? जब ये हम एग पिकअप कर लेते हैं, उसके अगर हमने फ्रेश साइकिल करना हो, वो तो हम करते हैं अबाउट 5th डे पे, अब तो 5th डे पे ही सारा होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो जाता Okay. है ऑफ द फ्रेश साइकिल में। और जो है हमारा क्या कहते हैं फ्रोजन साइकिल, उसमें तो हमने उसके नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन कि उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी है, वो अबाउट कोई 14th और 16th डे के दरमियान में। Sir, if the patient present with endometriosis and it was diagnosed on ultrasound, so the next step would be the laparoscopy to classify it. So after that, if it is on the classification is 1 or 2 SRM or 3 or 4, so we will give the IUI or IVF. So these IUI or IVF will give with the ovulation induction or without ovulation induction? नहीं, विद ओवुलेशन इंडक्शन। आपका फ्रेश साइकिल तो जो IVF हैं या विदाउट स्टिमुलेशन IVF जो हैं, उनका तो सक्सेस ही बहुत कम है, तो इसलिए नॉर्मली दे आर नॉट रिकमेंडेड। हम नहीं करते, लेकिन दुनिया कुछ कुछ सेंटर्स कर रही है। Thank you. ओके, चलो बेटा, अगर नो मोर क्वेश्चंस देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर।